कुछ नहीं है बच्चों, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। हमारा लॉ क्या था? mu ऑफ x बाय, साथ साथ बोलो यार, mu ऑफ x बाय इज इक्वल टू mu ऑफ y बाय इज इक्वल टू mu ऑफ, अभी आज कंडीशन भी देखेंगे बहुत सारी हैं, बट यस बिफोर वी डिस्कस दिस लॉ इसके साथ एक कंडीशन और क्या ऐड हो जाती है, mu ऑफ x एंड mu ऑफ y decreases because of as we increase the consumption of a commodity, the marginal utility derived from commodity X as well as commodity Y goes on decreasing, and that is due to law of diminishing marginal utility. Assumptions की अगर बात करें फटाफट से, बहुत सारी हैं, पढ़ेंगे अभी, आपको समझ भी आएंगी, बट मेजरली पेपर में कौन सी लिखना जरूरी है? कंज्यूमर इज, price of the commodity is given and income of the consumer to be spent on the commodity is given and mu of x and mu of y, ये भी assumption का part है, decreases as the consumption increases. Then हमारा ये लॉ आ गया था। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, करके बता दो मुझको, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, एंड लेट्स डिस्कस कौन ठीक करके है। रीड दैट क्वेश्चन बच्चों, क्या था वो? हाँ, mu of x is 5 and mu of y is 4. Px is rupees 4, Py is rupees 5. Is consumer in equilibrium? What will be the further reaction of the consumer? मुझे नहीं पता आप लोग घर से क्या करके आए, बस ईमानदारी से हाथ खड़ा करना इफ यू हैव डन इट राइट। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, कहता है इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रणय कि क्वेश्चन मुझसे मांग क्या रहा है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, फुल स्टॉप कॉमा एंड मैं वहीं पर रुक गया। मैंने कहा यार दो कमोडिटी है, दो कमोडिटी का लॉ कहता है mu ऑफ x। आप पेपर में आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे वो बता रहा हूं। आप सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? फॉर अ कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर ए कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम mu ऑफ x बाय is equal to mu of y by is equal to mu of, now मेरा mu of x कितना है, px कितना है, mu of y कितना है, this is what it is coming when we solve mu of x by px। हमारा आंसर क्या आया बच्चों? 1.25, and when we solve mu of y by py हमारा आंसर क्या आया? 0.8। so consumer is not in equilibrium. Once you have written this, so you will write consumer is not in equilibrium, यानी there is no equilibrium at the moment। अब आगे उसने क्या बोला बता? What will be the further reaction? Further reaction of the consumer. Now you are a consumer. If mu of x by px is greater than, ये मैं indirectly करा चुका था लास्ट क्लास में, mu of y by py, it means per rupee satisfaction derived from commodity x, per rupee satisfaction derived from commodity x in money term is greater than the per rupee satisfaction derived from commodity y। मैं दिखा दूंगा सारा, वो हमने पहले भी पढ़ा था। per rupee satisfaction derived from commodity x in terms of money is greater than the per rupee satisfaction derived from commodity। so can I say the consumer gains if he spend or if he transfer his expenditure from commodity y to commodity x? so can I say by transferring his consumption expenditure from y to x he gains more than what he sacrifices? अगर मैं उसकी एक यूनिट छोड़ूंगा तो मुझे लॉस कितने का? 0.8 का। उसके बदले सेम पर रुपी में मुझे y x का कितना बेनिफिट मिल रहा है? so I am gaining if I transfer my expenditure from commodity y to commodity। so by transferring his expenditure from commodity y to commodity x the consumer gains, and hence he will shift his consumption from y to, उसके बाद नेक्स्ट लाइन तो लास्ट क्लास में बोली थी, now consuming more and more of x leads to law of, as a result mu of x starts till
the point mu of x by px becomes equal to mu of y by, and equilibrium is, this is called the further reaction of the consumer. This is called the further reaction of the consumer. क्या लिख कर आया? ये लिख के बट अभी क्लियर है बच्चों मेरी बात? मैं आपको ये आंसर पढ़ा भी दूंगा और आप कहोगे तो मैं डिक्टेट भी कर दूंगा. डिक्टेट में इसलिए नहीं करता बच्चों, साथ साथ बोलो. मैं नोट्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि क्लास में उसे अंडरस्टैंड करने में टाइम लगा, लिखने में नहीं. लिखना क्या, लिख तो घर पे भी जाके सकते हैं, इसलिए मैं उसके नोट्स दूंगा आपको. बट यस, अब वापस मैं आपके लिए प्रणव रिपीट कर रहा हूँ व्हाट दिस वैल्यू मीन्स, कि मुझे per rupee satisfaction from x which I get is more than per rupee satisfaction from y. So can I say the consumer will gain if he transfer his expenditure from y to, so he will start transferring his expenditure. Now he will start increasing the consumption of x, and consuming more and more of x will lead to diminishing marginal utility, and as a result mu of x will start, when mu of x will start decreasing, it will continue to decrease till it becomes equal to mu y by, and equilibrium is, thank you. तो चलो ये मैंने बोला, अब जानबूझ के इसका उल्टा मैं देखता हूँ कौन मुझे सही बोल के बताता है. If mu of x by px is less than mu of y by py, does it represent equilibrium? No sir. Does it, same उसका उल्टा कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ. Does it represent equilibrium? No. So tell me what will be the reaction of the consumer? चलो पहले अक्षर. Consumer will start transfer the x commodity from commodity x to commodity y, as the satisfaction would be increasing in that, and after consuming a certain unit of commodity y, mu of y and mu of x would start to decrease to the point where mu of, आप बच्चों गलत बोल रहे हो, अब आप आराम आराम से बोलो. इसने आधा ठीक बोला आधा गलत. यस घर में कोशिश कर सकते हो बच्चों. मेरे को ये टॉपिक पे इतना टाइम क्यों लगा दिया प्लीज पुत्र, 3 नंबर का आने आना है मुझे पता है. आई कैन नॉट टेक अ चांस. यस प्रणय. Sir, here the consumer will transfer the expenditure from y to x, from x to y, and sir, yes, because he would be gaining if he transfers his expenditure from x to y. So sir, after consuming a certain amount of unit, mu of y will start decreasing because of law of diminishing marginal utility until the point where mu of y by py is equal to mu of x by px, and equilibrium is reached. बट बच्चों आप बोल सही रहे हो. फिर से आप देखो, अभी मैंने बोला फिर आप स्टार्ट वो नहीं किया. mu of x by px less than mu y by py means per rupee satisfaction. ये फर्स्ट लाइन मुझे चाहिए पुत्र. और अगर ये फर्स्ट लाइन रट्टा मार लिया समझ ली, उसके बाद आपको अपने आप चेन कुली की मेन कुली मिलेगी. क्या कह रहा हूं मैं बार बार? पर रूपी satisfaction derived from commodity y is greater than the per rupee satisfaction derived from commodity. It means if a consumer transfers his expenditure from commodity x to commodity, he gains more than what he sacrifices, which induces him to consume more of y. अब उसके बाद वो normal है. Is that clear guys? All right. तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी किया था, 2 कमोडिटी किया था, और 2 कमोडिटी से रिलेटेड मैंने आपको ये चीजें बता दी. नहीं 3 नहीं है. अब देखो ये मैं आपको सिर्फ टाइम पास के लिए अगर फटाफट से पढ़ूं, ये जो हमने लॉ किया था, क्या कहता है बच्चों? इधर देखना प्रणय. A consumer gets maximum satisfaction when the ratio of mu of two goods and their respective price are, यानी कंडीशन नंबर 1 जिसको उसने इंग्लिश में लिख दिया. रेशियो मींस mu of x by px is equal to mu of y by, तो रेशियो ऑफ mu of two goods with respect to price of two goods is equal. एंड सेकंड कंडीशन क्या थी? mu of x as well as mu of y decreases as we increase their consumption due to law of, यही तो लिखा बेटा,
as the consumption increases. हाँ जी भाई. What are the two conditions? mu of x by px equals mu m of x, mu m of y. नहीं, ये mu m का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्वांटिटी, जिसको आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी भी बोलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी बोलते हैं. एंड सेकंड कंडीशन क्या है बता, इसीलिए उसने इकट्ठा करके लिख दिया उसने इक्वेटिंग 1 and 2. तो आपको प्लीज पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है. आपने सीधा क्या लिखना है? अ मार्जिनल यूटिलिटी बाय x by px by py is equal to mu of a rupee. ना उसके बाद ये हमने बात किया था, सपोज mu of x by px is greater than mu of y by, it means consumer is getting more utility in case of good as compared to, therefore he will buy more of. आपको सेटिस्फेक्शन किससे ज्यादा आ रही है? x से, तो you will buy more of and less of y. Now buying more and more of x will lead to, this will lead to fall in and rise in. ये मैंने नहीं बोला था, ये समझ आता है? मैं बताता हूँ, इसको इस तरह से लेना मालूम. हम बात कर रहे हैं mu of x by px is greater than mu of y by p. इससे हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है. मैं सेम एग्जांपल जो आप घर से करके आए हो, ज्यादा मिल रही है, तो यू विल बाय मोर ऑफ कंजम्पशन ऑफ x, कंजम्पशन ऑफ y. इसको खाई जा रहे बोर हो गए ना खा के, इसीलिए तो उसकी सेटिस्फैक्शन after certain point, because of law of diminishing marginal utility, mu of x will start, और y को खाए हुए तो बहुत दिन हो गए, mu of y will start. It's simple. मेरे को गोलगप्पे, मैं गोलगप्पे रोज खाता हूँ, आइसक्रीम खाए हुए 2 महीने हो गए, तो बताओ सेटिस्फेक्शन किससे ज्यादा आएगी अगर एक दिन गोलगप्पे और आइसक्रीम दोनों खाने जा रहा हूँ? तो पर रुपी सेटिस्फेक्शन जो गोलगप्पे से आ रही है आइसक्रीम की उससे. तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि once you start increasing the consumption of commodity x due to law of diminishing marginal utility, mu of x will, but mu of y will, क्योंकि उसको तो खा ही नहीं रहे इतने टाइम से. सो क्या होगा? दिस वाज द पोजीशन, x गिरना शुरू हुआ y till it becomes equal to and equilibrium is restored. So this is what it says. Therefore the consumer will continue to buy more of x till mu of x by mu of y become equal to rupee, which is also called mu m, which is also called mu m, and same goes for this. अब इसमें क्या हो रहा है? mu of y ज्यादा है, तो you will consume more of Y. less of X. now. Consuming more and more of x, the law of diminishing marginal utility will apply. As a result, mu of y will start and mu of x will start till they become and equilibrium is. और सेकंड कंडीशन क्या थी बच्चों? mu falls as the consumption, और ये तो मैंने पहले ही बोल दिया भाई, because of law of. अदरवाइज एक बात बताओ ना, अगर mu of x गिरता रहेगा और mu of y भी गिरता रहेगा, कभी इक्वल आ पाएंगे? So that is why as we increase the consumption, the satisfaction derived from every additional unit goes on decrease. Okay, मैं इस टॉपिक को पेंडिंग रख रहा हूँ बच्चों. रिकॉर्डिंग चल रही है उधर, ये रेड अगर आ रहा है तो चल रही है. पेंडिंग लिख ले कॉपी के पीछे माधव, वैसे आयशा लिखती थी, कोई भी 2 बच्चे लिख लिया करो बच्चों. पेंडिंग द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ 2 कमोडिटी. आज पहले 1 कमोडिटी की करेंगे, उसकी मैंने डायग्राम तो बताया ही नहीं, मैंने तो अभी तक सिर्फ टीयू एमयू और रिलेशनशिप का डायग्राम किया था, और किसी का तो डायग्राम किया ही नहीं. तो कॉपी पे हेडिंग डालते हैं, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, और कॉपी के पीछे माधव पेंडिंग लिख लोगे, माधव, आन, प्रणय, कोई भी 2-3 बच्चे. डायग्राम ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी पेंडिंग, क्योंकि 99% स्कूल्स में नहीं करवाया जाता. दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट फिर भी कराया जाएगा, जो बुक में दिया है मैं करा दूं. अभी नहीं, अभी के लिए पेंडिंग करते हैं ना. अभी हम हेडिंग डाल रहे हैं बच्चों कॉपी पे, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ 1 कमोडिटी. अजीको में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए ना.
क्लास में अटेंडेंस लगा दो। डायग्राम रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इसकी मम्मी को फोन करना पड़ेगा। डायग्राम रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। हाँ, भगवान हमारा भला करे। यहाँ पे मैंने वापस गर्व से पूछा, गर्व फटाफट से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मेन जो कंडीशन है वो क्या थी? व्हाट इज द कंडीशन व्हिच शोज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने तो ऐसे लिखवाया था, mu of x एंड अब आप बच्चे समझदार हो चुके हो, आप इसको mu m भी लिख सकते हो, आप इसको mu m भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू पार्ट 2 px भी लिख सकते हैं। सो इसको अब आपने क्या बोल दिया, mu of x by px equals which is also called mu of the rupee. This is the condition. Okay. Now मैं इस कंडीशन को प्रेफर करता हूँ सॉल्व करना, बताता हूँ क्यों। मुझे फटाफट से कोई भी एक बच्चा, इसी बहाने मेरा वो शेड्यूल रिवाइज हो जाएगा। यूनिट्स 1 से शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6। mu की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने? उसके बाद हमने क्या लिखा था, mu of x by mu of, और you can call it as mu। तो हमने बार बार 10 को किससे डिवाइड किया था? क्योंकि हमने क्या assumption ली थी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 2 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी रुपी गिव्स अ सेटिस्फैक्शन इक्वल टू, यानी MUM इज इक्वल टू 2। MU ऑफ रुपी बोल पुत्र या MUM बोल बार एक ही। 8/2, 6/2, 4/2, 2/2, 0/2, -2/2, 5 4 3 2 1 0। अब मानो ईमानदारी से बताना, इन दो टॉपिक के ऊपर मैंने 2 से 3 क्लासेस लगा दी, फिर भी अगर आप पेपर में गलत करके आओ तो बुरा किसको लगेगा? आपको या मुझे? मुझे, कि मैंने अभी भी नहीं सिखा पाया यार इतनी कोशिश के बाद। वहां बुरा लगता है when you lose marks, because these two together can count for bare minimum 4 and maximum 6 to 8 marks, please. Now अब हम आगे आ गए, आपने इसको किससे कंपेयर किया? और this is the point which represents consumer। अब उसी को डायग्राम में देना है ना, मैंने ये बनाया डायग्राम। यहाँ पे क्या लिख दो, mu of x by mu slash px दोनों, और यहाँ पे क्या यूनिट्स कंज्यूम 1 2 3। What is the shape of MUM as the unit? It means between the two variable the relationship is inverse। और लास्ट टू लास्ट क्लास में भी बोला था, जब भी किसी 2 वेरिएबल का रिलेशन इनवर्स होता है तो डायग्राम हैज टू बी, ये छोटी सी बात याद रखना, बिटवीन द 2 वेरिएबल जब भी आपका रिलेशनशिप इनवर्स है तो डायग्राम शुड बी डाउनवर्ड स्लोप। डिक्रीजिंग नहीं बोलते उसे हम दोस्त, डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते, तो डायग्राम शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। MU का भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, MUM का भी, ये मैंने बना दिया MUM 5 4 3 2 1 0 -1, यानी it can be positive, it can be, और प्राइस आपका क्या है? constant which is ₹2। और ये जहां पे इंटरसेक्शन आया, ये डेफिनेटली कौन सी यूनिट होगी? एज पर द शेड्यूल ये कौन सी यूनिट होनी चाहिए? 4th यूनिट। सो आपको हमने डायग्राम बना के दिखा दिया। पेपर में यूनिट्स नहीं लिखनी होती है टाइम्स, आप इसे OQ भी लिख देते हो जब तक टीचर ना बोले कि शेड्यूल को रिप्रेजेंट करो। अगर शेड्यूल को रिप्रेजेंट करना है अपने, तो मैं इसको क्या बोलूंगा पुत्र? 4, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा। सो कैन आई से दिस इज द पॉइंट व्हिच रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब डायग्राम बना लो। शेड्यूल आप लिख देना, शेड्यूल सेम एज द प्रीवियस, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस रिवाइज करना था आपके साथ।
जो बच्चे भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन पे रेस लगाई थी, बस यही ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन जब आप देखते हो रिकॉर्डिंग में तो ये फर्क हो जाता है। उस समय मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रखी हूँ ना। मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ा, मेरे बड़े पापा मुझे एक चीज कहते थे, रो और कॉलम, ये दो चीजें होती हैं। कहते थे तू रो। कहने का मतलब ये देखना बच्चों, क्वेश्चन आप ऐसे लिखोगे ना बच्चों पेपर में, तो यूनिट्स 1 2 3 राइट। सुनना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद भगवान भला करे आपका TU 16 डैश डैश एंड सो ऑन। MU कितना बच्चों, डैश 12 8 एंड सो ऑन। तो कहते थे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने की कोशिश करो, रो वाइज। वो कभी नहीं कहते थे कि पहले पूरा TU सॉल्व करो, पहले पूरा MU सॉल्व करो। कहते थे तू रो, ऐसे बोलते थे। कहते थे रो बेटा, सॉल्व रो वाइज। तो ठीक है, मैंने जैसे फर्स्ट रो पे फोकस किया, मुझे पता है यहाँ मैं क्या लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द assumption which we have understood, फॉर्मूला कह लो जो मर्जी कह लो, एट फर्स्ट यूनिट MU एंड TU आर ऑलवेज, जैसे मेरे शेड्यूल में 10 10 था, 8 होगा तो 8 8, 16 है तो 16 मैंने लिख दिया। फिर कहते थे अब सेकंड पे तू फिर रो, मतलब रो वाइज रो। TU निकालना है, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज, फॉर्मूला सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 16 and 12 28 and 8। तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ बच्चों, ये MU 16 आया, ये कितना आया मतलब 28, ये कितना आया 36, तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा। तो मैंने कैसे सॉल्व किया, रो वाइज। मुझे नहीं पता आपने कैसे किया, बट कई बार कुछ क्वेश्चन होंगे जो आधे रो वाइज होंगे आधे कॉलम वाइज, तो तब आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। बट टू बिगिन विद कोशिश करोगे वी शुड सॉल्व इट रो वाइज। अनदर थिंग जिसकी वजह से आधा नंबर पत्र पेपर में कट जाएगा बोर्ड एग्जाम में, मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन जब 12th में भी होंगे। अब आपने आंसर तो लिख दिया, बट यहाँ पे कोई भी बच्चा पेपर में ये नहीं लिख के आता क्या, फॉर्मूलाज साथ में कैसे लिखाओगे, पेपर कॉपी ले रहे हो, क्योंकि इसने मैंने इन दोनों की कॉपी दूर से लिख ली थी ना, फॉर्मूला लिखा ही आई कैन सी। बच्चों आप बहुत लंबा कर रहे हो प्रेजेंटेशन, आपको वही टेबल दोबारा बनाना है जैसे इन लोगों ने। आपने ठीक किया, बट इंस्टेड ऑफ दैट क्या करो, आप ये टेबल दोबारा से कॉपी करो बच्चों, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भर दो और नीचे लिख दो फॉर्मूलाज यूज, लाइक समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस कि these are the two formulas you ended up using in this question. क्लियर है मेरी बात? ये देखो ऐसे ऐसे मैंने लिखा था, उन्होंने तो टेबल अपनी जगह बचाने के लिए ऐसे दिया है, पेपर में आप ऐसे सॉल्व करके आओ। और ये देखो ये लिखा हुआ, या तो यहीं पे लिख के दिखा देना टीचर को, या अलग से लिख देना अपने फॉर्मूलाज नहीं। इस केस में आपको कैलकुलेशन शो करने की जरूरत बेटा नहीं। डन, लॉक कर दूं, कर दिया। चले आगे बच्चों। सर ये तो आप पीछे जा, एग्जाम्पल 5। जो भी बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है, अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज नहीं कर रहा हूं जान के, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो थोड़ा बोर होंगे अगर वो साथ साथ खुद सॉल्व नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 5 पेपर में आ गया फॉर 3 to 4 मार्क्स। मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहा है, मैं उसके बाद कुछ नहीं बोलूँ। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर फॉर कमोडिटी X, प्राइस इज ₹6 per unit, हाउ मच कंज्यूमर शुड कंज्यूम टू गेट, यानी इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक कमोडिटी है यानी वन कमोडिटी केस, तो लॉ भी किसका लगाना पड़ेगा, वन कमोडिटी का। वो मुझे कह रहा है फाइंड आउट द यूनिट्स टू बी कंज्यूम टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये किसकी डेफिनेशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। Because whether it is commodity 1 or it is commodity 2, we say we must consume so that we get maximum satisfaction, and once we touch that point we have no reason to increase or decrease the, नहीं बोलता था ना, हाँ जी
आप बड़े स्मार्ट हो सारे, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, दिल सच्ची बागो बाग हो रहा है। बट अभी रुकते हुए इस क्वेश्चन के अंदर आपको अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल के बताना है वन कमोडिटी का, टाइम अलॉटेड 3 मिनट्स, जिसका हो गया अच्छी बात। नहीं बच्चों प्रेजेंटेशन बताओ, नहीं ओरली नहीं बच्चों, पेपर में तो लिख के देके आएगा वो प्रेजेंटेशन। अच्छा वापस, इन गधों ने ऐसे दिया हुआ है, आप ये टेबल कैसे बनाओगे, कॉलम वाइज, जैसे वो पीछे ऊपर वाला आंसर था, और उसके बाद अपना आंसर सेलेक्ट करोगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके सामने लिखोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। One minute to go. Done? अब देखो मेरी बारी, जो मैं शुरू में पहले दिन दूसरे दिन बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, 1 रुपी अगर इक्वल टू 1 यूटिल है तो आप डायरेक्टली एमयूएक्स में कंपेयर, याद आई ये बात, अगर 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल है तो एमयू ऑफ एक्स बाय 1 विल रिमेन एमयू एक्स, रिमेंबर व्हेन आई वाज सेइंग। तो रुपी की यूटिल दी है या इक्वल टू 1 दी है या नहीं दी, नहीं दी और इक्वल टू 1 इज 1 एंड वहां डायरेक्टली एमयू को एमयू ऑफ रुपी में कन्वर्ट करने की जरूरत, कर दो डायरेक्टली कंपेयर। ना उसने अपना आंसर दिया बच्चों, कहता है कहां पे आया, उसने क्या लिखा उसको छोड़ दो बच्चों, आपकी प्रेजेंटेशन में मुझे क्या क्या चाहिए आप सुनना, स्पेशली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, स्पेशली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मुझे आपके आंसर में क्या क्या चाहिए, जो बुक ने लिखा है वही चाहिए, बट बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट द टीचर वांट। यूनिट्स कितनी बेटा बोलिए जरा फटाफट, उसके बाद टीयू दिया था, कितना दिया था, हाँ और एमयू और पीएक्स। अब आपने पेपर में क्या करके आना है, ऐसे लिख के आना है पहले तो, क्योंकि टीचर को जब दूर से ये चीज दिखती है ना, शी गेट ब्लेस्ड, कहती बस खुश हो। अपना और बोर्ड कहाँ से, अभी के लिए दे दो, फिर बाद में चेंज कर देंगे, हाँ दे दो।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पहले तो ये लिखना है और उसके बाद आपको इसको जस्टिफाई करना है। कैसे, ये पढ़ो आंसर बच्चे, और ये आप लिखोगे कॉपी पे। कंज्यूमर विल नॉट परचेज लेस देन, व्हाई, बिकॉज MU इज मोर देन, MU इज मोर देन प्राइस का मतलब क्या है, द सेटिस्फैक्शन इन terms of money is more than the price paid for a, I commodity. am gaining more than what I am paying for it, जो हमने पहले भी बात किया था बेटा। यहाँ पे वो कहता है I want stock because in all the above cases my MU, ये जो MU है बेटा इस केस में यही तो MU है, क्यों, क्योंकि MU upon 1 is MUM। तो MUM means per rupees satisfaction in money term is 10 is more than the price paid for the, he is gaining 4, 2, 1. As long as you are gaining more than what you are paying for it, you want stop the consumption, जो हमने numericals में भी किया था। So there is a scope of consumption. This is what they are saying. There is a scope for increasing the total satisfaction. Now, similarly, consumer will not buy more than 4 because here you start losing. You are getting a satisfaction equal to, by paying, yani you are paying more than what you are getting in money terms. So you won't do that. And that is the reason we stop at point. यानी वो दोनों पॉइंट इनडायरेक्टली 4 नंबर में प्रूव करने हैं कि मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फोर्थ यूनिट क्यों है, बिकॉज इफ I stop at a unit say less than 4, I will not. Why? Because there is a scope of increasing the satisfaction. लिखो बच्चों, ये पॉइंट लिखना है। A consumer will not stop at, consumer will not purchase less than 4 units. Consumer will not purchase less than 4 units. Consumer will not purchase less than 4 units as MU is more than price, and there is a scope of increasing the satisfaction, and there is a scope of increasing the satisfaction by consuming more units. ये जो आप लिख रहे हो उसको रट्टा नहीं मारना माधव, ये देखो कहते हैं मैं थर्ड पे क्यों नहीं रुकूंगा, इधर देखो बेटा सामने, थर्ड पे क्यों नहीं रुकूंगा, क्योंकि थर्ड तक टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी आई है, I can go till 31, so why not to go? So I will not stop at less than 4 because there is a scope of increasing the satisfaction and increasing the total utility, and I will not consume more than 4 because I start losing more than what I am gaining out of it. Next point, bachcho. He will not buy more than 4 as MU is less than price, and total satisfaction can be increased by purchasing less quantity. All right. Now ये क्वेश्चन गया मेरा ये
एग्जाम्पल से कोई बात नहीं यार, मैं इनको छोड़ नहीं सकता, आपके पेपर में ये वो क्वेश्चन जो आते हैं। एग्जाम्पल 7 पढ़ा जा रहा है आप लोगों से। एग्जाम्पल 7, आज एग्जाम्पल 7 मेरे लिए पार्थ गुप्ता सॉल्व करेगा, मेरे को जवाब देगा। अब रेस नहीं लगा रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके पत्थर दिख रहा है बेटा। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। यस, कहता है सपोज दैट एन आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30। आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30। यहां तक पढ़ के मेरे बेटे को क्या समझ आया? राहन आपकी ड्यूटी है, मुझे लास्ट में याद दिला दो, मुझे पूरा पीडीएफ शेयर कर। सपोज द आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30। इससे आपको क्या समझ आया? यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 30। लेट्स से आइसक्रीम इज कमोडिटी X, तो प्राइस ऑफ X इज गिवन टू मी एज Lakshmi, who loves ice cream, has already eaten 3। वो कितनी यूनिट्स खा चुकी है? 3 यूनिट्स। ये तो मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, खा चुकी है, खा चुकी है। हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग द थर्ड आइसक्रीम, पहले दिन से बोल रहा था 3 थर्ड, अब नहीं बोलूंगा क्या। हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग थर्ड आइसक्रीम इज 90 यूटिल्स। ये क्या? ये 90 यूटिल्स क्या है? इसके सामने क्या लिखा? बीच में कोई नहीं बोलेगा, पार्थ गुप्ता के बारे में। हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट मींस थर्ड आइसक्रीम, इज 90 यूटिल्स। इसका क्या मतलब हुआ? थैंक यू, यानी MU ऑफ थर्ड इज 90। एब्सोल्युटली राइट। ओके, आगे चल पार्थ गुप्ता। इफ MU ऑफ ए रुपी इज 3 यूटिल्स, आगे मत पढ़ो, इसका क्या मतलब हुआ? कहता है इफ MU ऑफ ए रुपी इज 3 यूटिल्स, इसका क्या मतलब? यानी अब तो मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप इसे MUM बोलो, आप इसे MU ऑफ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब क्वेश्चन आपसे, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, मैं तो बस रिपीट कर रहा हूं। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, शुड शी ईट मोर आइसक्रीम और शुड शी स्टॉप? बारी उसकी है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बाकी आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लो, आई डोंट माइंड इट। शुड शी ईट मोर और शुड शी स्टॉप? आज ठंडा लग रहा है थोड़ा सा, शायद अकाउंट्स में नहीं लगेगा। नहीं ना, she should stop. Why? He says she should stop. So because mu x upon mu of 1 times mu m is equal to 3x. So 90 upon 3 is equal to 30. अब यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश लिखती हो बेटा। For a consumer to be in equilibrium, MU of x by MUM should be equal to x. MU of x कितना है बच्चों यहाँ पे? और MUM कितना है? It is coming equal to, which is equal to, यानी consumer is at the point of maximum satisfaction. यहाँ पे इंग्लिश क्या लिखनी है? Consumer is already at the point of, and hence he should stop. क्योंकि उस पॉइंट से, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ना एक कम ना एक ज्यादा, ना एक कम ना एक ज्यादा। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ पे ये निकालने के बाद आप लिख दोगे which is equal to Px means consumer is at equilibrium, called the point of maximum satisfaction, and hence he has no reason to increase or decrease the consumption of a commodity.
एक मिनट आ रहा हूं। Is this clear to everyone? सभी का आंसर नहीं था बच्चों? We should stop. Okay. ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसके लिए अब हम रेस लगाएंगे। बड़ा टुच्चा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मुझे कुछ चीजें चाहिए बच्चों जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी, देखते हैं किसको याद होगा। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, मैंने आज पूछा नहीं, और वो मैं पूछ भी नहीं सकता था उत्तर, वो मैं न्यूमेरिकल्स के साथ ही पूछ सकता हूँ जो समझाया था। दिस इज द क्वेश्चन। आहान, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूँ। कहता है determine how many units of both the commodities should be purchased by Rakesh to maximize his total utility. यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू, आप अपनी कॉपी के पीछे जाके लॉ देख सकते हो। वैसे तो लॉ सिंपल था, क्या था? mu of x by px should be equal to mu of y by is equal to last rupee spent on either of the commodity given the price of the commodity and money income to be spent on the goods. बट उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आप चाहो तो पीछे देख सकते हो, अलाउड है आज चीटिंग करना, इट्स ओपन टेस्ट, बट मुझे प्रेजेंटेशन वाइज सही चाहिए। तो मैं टोटल आपको 4 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, और वीडियो पॉज, बस बात मत करना क्योंकि यहाँ आवाज आती है मुझे। पहले तो मैंने ये अपने दिमाग में पिक्चर बना ली, क्योंकि हमने उस दिन लिखा था ना, px into qx plus py into qy should be equal to y. It has to be exactly equal to the given money income. It has to be exactly equal to the given money. Now मेरा आपसे सवाल, अब जब मैं लिखूंगा following combination exist, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? For a consumer to win equilibrium, वो लॉ तो लिखना ही लिखना है। mu of x by px should be equal to mu of y by py should be equal to mu called mu of a rupee. Then you will start writing these combination. देखो ये कंडीशन आप लिखोगे बच्चों पहले। Always remember, जब भी 6 मार्कर क्वेश्चन है, पहले आप अपना लॉ लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? प्रैक्टिकली पूछ रहा था, तो क्या हुआ? पूछ क्या रहा था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 1 कमोडिटी है तो 1 कमोडिटी का लॉ, और 2 कमोडिटी है तो, और दोनों की एक कंडीशन तो सेम है, mu of a commodity falls as the consumption because of law of, वही तो लिखा, और लिखा क्या? Then उसने लिखा mu of last rupee spent on x gives the same satisfaction of 10 utils, जो भी लिखा उसने। ये जो आंसर लिखा, मैं इसको प्रेजेंट नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरा आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। इधर देखना बच्चों, पहले आप क्या लिखोगे? कंडीशन, फिर आप लिखोगे फॉलोइंग, बोलो उत्तर, फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। नंबर 1 क्या पुत्र? 10 और 10। 10 और 10 मींस 2 units of x and 2 units, ये आपको पेपर में करना है, ये आपको पेपर में करना है बच्चों, जो मैं लिख रहा हूँ। 2 units of x plus 6 units of 2 into px 1 plus 6 into px 1, 8, which is equal to consumer number 2। वो भी लिखना जरूरी है। कौन सा कॉम्बिनेशन? ये वाला। थैंक यू। 4 units of x plus plus 7 units of y। Rather 11 is greater than, क्या लिखोगे बच्चे यहाँ पे? I love you guys, दिल खुश कर दिया। फिर उसके बाद मेरा बेटा ये लिखोगे that marginal utility, उसपे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? Because last rupee spent on commodity X
as well as commodity Y gives equal to 8 utils, gives equal satisfaction equal to 8 utils and consumer equilibrium is attained. फिर उसने क्या पूछा था, रुको बेटा, उसने एक चीज और क्वेश्चन में क्या पूछी थी बच्चा, टू मैक्सिमाइज हिज, जल्दी मत करना, टू मैक्सिमाइज हिज मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं वो तो कंपैरिजन में है, बट टू मैक्सिमाइज हिज, तो पेपर में एक नंबर कम मिलेगा अगर आप ये निकालने के बाद ये नहीं लिख के आएंगे कि देयरफॉर टोटल यूटिलिटी अचीव्ड इज इक्वल टू, रुक जाओ, आपने एक्स की कितनी यूनिट्स ली गाइस, 2, आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे एक्स की कितनी यूनिट्स ली, 2, आपका उन 2 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन कितना था, 11 एंड गर्व सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज, तो मेरे को ऐड करके दिखाना है क्योंकि उसने बोला टोटल यूटिलिटी, वो भी लिख के बताना है। सिमिलरली y की मैंने कितनी यूनिट ली बता, 6, तो बताओ 19 17 15 13 12 एंड प्लस 19 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 10, राइट, यही था ना, 19 17 15 13 12 10, और अब इसका टोटल करोगे तब जाके माधव मुझे 6 on 6 मिलेंगे, बिकॉज ये लास्ट लाइन ना हम जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है माधव, कौन थी मेरा बेटा, टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी, तो आपको लिख के बताना है कि इस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आया और मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन पर टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, जितनी यूनिट्स एक्स के लिए उसका उतना एमयू ऐड कर लो, क्योंकि सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी, और जितनी y की यूनिट्स ली उतना उसका mu ऐड कर दो, और उन दोनों को ऐड कर दिया, दैट्स द टोटल सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दीज 2 कमोडिटीज। यस बेटा, आप डाउट बोलो बच्चों, वो तो उससे भी और ज्यादा है, मेरी औकात से दूसरा ही बाहर हो गया, तीसरा तो उससे भी बाहर होगा, नहीं, कौन से 2 लिखने होते हैं, सुनना, एक जो मेरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले आता है, इस केस में ऐसा कोई था ही नहीं, और एक जो मेरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद आता है। पहले वाला क्यों दिखाना होता है, जो आज लॉ पढ़ा था, पहले वाला इसलिए दिखाना होता है यार अभी भी सेटिस्फैक्शन और आ रही है, which will induce me to consume, that's why I want stop at a unit less than the point of satisfaction, or more than desirable but not, that's why we stop at that, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात किया। यस, किसी को कोई डाउट बच्चों, ऐसे ना करो, अरे आपकी बस ये लास्ट क्लास थी जिसमें डिस्टर्बेंस थी, because now camera installation is totally complete।